good morning, everyone. Am I audible there? Am I audible there? Yes, sir. Okay. So the presentation is visible on your screen. Yes, sir. Presentation आ गया? Okay. So yesterday we were talking about Fermi surfaces. So today we will move towards how we can measure the Fermi surfaces experimentally, and we'll be seeing two important techniques. I think this all was done, so I'm just moving into that quickly. Is there any question from what we have done yesterday? किसी का कोई question हो, confusion हो? Any question? No? Okay, so okay, now we were to discuss this, how to measure Fermi surfaces. And one very important technique is angle resolved photoemission spectroscopy, which is employed to measure the Fermi surfaces. And this technique is not, angle resolved photoemission spectroscopy is a specialized situation in a more generalized spectroscopy, which is called photoemission spectroscopy. So basically, these photoemission spectroscopy techniques employ radiations, electromagnetic radiations, and then when those electromagnetic radiations are incident on a material, then those radiations eject out some of the electrons from the material. So now, based upon from where or from which state the electron has come out, we can get an information of the state from which electron has been ejected. So that's the common idea behind the photoelectron spectroscopy. Before I talk about all this, let us try to see the this small schematic diagram to understand. We're talking about this diagram, okay, to understand how this technique works. So basically, electrons in any material are filled like this. So you have some core states, and then there are some valence bands as well. This all we have done in detail in earlier classes. So this is like your core states. So they don't have much dispersion with wave vector k. You can say something like this, okay? These are your valence states, where this is density of states actually, right? So density of state is e raised to the power half dependent, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से पढ़ा था ना, तो ये वो वाला ग्राफ है. तो ये आपके मतलब यू कैन से दी वैलेंस, सो यू कैन से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सॉलिड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं किसी तरह से, ठीक है? वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. सो मेटल के केस में द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैपिंग, सो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा क्या है. फेर्मी लेवल के ऊपर वालों को हम कंडक्शन या फेर्मी लेवल के आसपास वाली स्टेट्स को हम कंडक्शन स्टेट्स बोल देते हैं, ठीक है? और उसके नीचे वाली जो फुली ऑक्यूपाइड है उनको हम सॉर्ट ऑफ वैलेंस स्टेट्स बोल सकते हैं, ठीक है? तो होगा क्या, when you incident some energy on the material, so depending upon how much is the energy, it may eject the electrons either from states near Fermi level or even from very deep core levels, ठीक है? So उसके बेसिस पे एनर्जी कौन सी है उसके हिसाब से आपकी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं. For example, people use what we call as X-ray photoemission spectroscopy. So when incident radiation is X-rays, we call that XPS, X-ray photoemission spectroscopy. And X-rays की energy typically few hundred electron volts तक हो सकती है, और core states भी आपकी few hundred या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती हैं. काफी स्ट्रांगली बाउंड होते हैं मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको इतनी एनर्जी चाहिए होती है. Whereas the electrons in your valence bands or in conduction band in these regions,
उनकी एनर्जी टिपिकली फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके आसपास की स्टेट्स जो होती हैं वो वैलेंस बैंड में लाई करती हैं, वैलेंस या कंडक्शन बैंड के आसपास। तो अगर आप एक्सरे फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि आपको कोर लेवल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोर स्टेट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी स्टेट किस एनर्जी पे है या कौन कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं, वो सब चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। Now, depending upon the energy of the radiation, if it is something like ultraviolet radiation, है ना, तो then people talk of UV photoelectron spectroscopy. So that kind of information is or that kind of radiation is used to investigate the valence and conduction band. So valence band की information ultraviolet photoelectron spectroscopy से आप निकाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी कम है तो कोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो सकते. So only electron will be coming from the valence band, and accordingly we will get better information of the valence band. So that's the basic idea of photoelectron spectroscopy techniques. अब करते कैसे हैं हम? This is the idea here. So setup क्या है? Shoot the light, that is photons, on a material, and when the photons hit electron, I mean inside the material, the electron may fly out of the sample, I mean out of the material, which this process is known as photoelectric effect. I hope आपको पता होगा ना photoelectric effect. So photo emission में हम photoelectric effect use करते हैं, मतलब photo emission, and this electron will be picked up by a detector. So what we do is we place some detector, and then that detector actually is capable of detecting whether the electron has come or not, and along with that it also is capable of measuring whether or what is the energy of the electron. So उन दोनों चीजों को आप एक डिटेक्टर के हिसाब से या डिटेक्टर को अप्लाई करके हम मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज टिपिकल हेमिस्फेरिकल डिटेक्टर. तो ये इसमें आप एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो होगा क्या, सपोज नाउ यू कैन डिटेक्ट द व्हाट यू कॉल energy of the electron and whether the electron has come or not. So accordingly, ये why people are still joining? What is going on यार? आप लोग टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? Okay, so now we have energy of the electron as well as the we can detect from where the electron has come. वो किस तरह से पता चलेगा? We can actually measure. So this is the idea. Energy conservation से हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेट से इलेक्ट्रॉन आया है. If EP is the energy of the photon, E is the initial energy of the electron, means जिस स्टेट से वो आया, something like this, ठीक है. And if we can actually measure the energy of the electron after it was ejected and in the detector, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट से आया है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी हमें नोन होगी. वी विल बी नोइंग कि भाई कौन सी जो रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं. सो एनर्जी ऑफ द फोटोन हमारे पास नोन होगी, तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन हैज कम. दैट विल बी ई फाइनल माइनस ई फोटोन, है ना. तो वहां से हम निकाल सकते हैं. तो डिटेक्टर में हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो मेजर कर सकते हैं. आप गूगल करिएगा हेमिस्फेरिकल डिटेक्टर्स, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन की आप वहां से पढ़ सकते हैं कि ओके, दिस इज क्वाइट क्विक ओवरव्यू ऑफ द सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स. सो यहाँ पे एक रेडिएशन सोर्स, एज यू कैन सी, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी चेंज द कलर हियर. या, so you can see there is a radiation source from here. This radiation source is sending energy on the sample. तो यहाँ से sample आप load करते हैं, sample यहाँ कहीं पे है. This is where your sample is sitting, okay? तो वहां से जब आप रेडिएशन उस पर डालेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एंट्रेंस स्लिट के हिसाब से एंटर करेंगे. ये एक डी शेप्ड, एक हेमिस्फेरिकल होता है 3D में एक्चुअली सेटअप होता है, जिसमें कि ये इनर मेटल, ये इनर वॉल होती है उसकी, एंड दिस इज योर आउटर वॉल. सो एनर्जी आप कैसे मतलब मेजर करते हो इलेक्ट्रॉन की, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट. सो बेसिकली आप इसमें एक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, इसमें. तो होगा क्या
कि इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो वेलोसिटी जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगी, प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको अंदर की तरफ को खींच रही है। इफ यू कैन सी पॉजिटिव टर्मिनल इनवर्ड है, तो ये अंदर की तरफ को इसको खींचेगी। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होने चाहिए। सो मतलब mv²/r जो है that will be proportional to, that will be equal to what, half mv², काइनेटिक एनर्जी से हाफ mv² जो है वो किससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, mv²/r। और mv²/r किससे आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है। कितनी वोल्टेज लगाई है ये हम नाप सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे सिर्फ एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ही इसमें से पास होके आपको डिटेक्टर पे मिलेंगे। अदर्स विल बी एक्चुअली गेटिंग कलेक्टेड इनटू दी वॉल्स। तो जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज्यादा होगा वो यहाँ पे इस वॉल पे आके करंट के थ्रू कहीं कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जिनकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल दोनों, जिनमें की एनर्जी ज्यादा होगी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, वो बाहर वाली वॉल पे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो अकॉर्डिंगली वी कैन चेक और वी कैन फाइंड आउट कि भाई किस तरह से एक स्पेसिफिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ही आपके डिटेक्ट होंगे। तो हम क्या करते हैं, वी सेट अप द वोल्टेज फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड देन मेजर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग एट दैट वोल्टेज। तो वहां से हमें आ जाएगा कि किस एनर्जी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समथिंग लाइक दिस, किस एनर्जी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन वी चेंज द वोल्टेज, ट्राई टू मेजर इलेक्ट्रॉन। कुछ एनर्जी रेंजेस ऐसी आएंगी जिन पे कोई भी वोल्टेज नहीं, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो वहां पे आपको लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब मटेरियल में कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध नहीं है, इसलिए तो वो इजेक्ट नहीं करेंगे, कम होंगे उस एनर्जी के लिए। सो अकॉर्डिंगली वी कैन मैप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यू कैन से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एक्चुअली फॉर ए मटेरियल। तो हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एक मटेरियल के लिए मैप कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाय यूजिंग दिस फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट। तो और कितनी एनर्जी होगी यहां से आप गेस कर सकते हैं, मतलब कि उस स्टेट की कितनी एनर्जी होगी। फाइनल एनर्जी हमने मेजर कर ली, फोटोन की एनर्जी हमें पता थी, तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट से आया होगा दैट वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। सिमिलरली वी अभी हम कह रहे हैं अच्छा नहीं हमें तो फेर्मी सरफेस की बात करनी है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, हमें तो बैंड स्ट्रक्चर की बात करनी है। सो बैंड स्ट्रक्चर जब निकालना है, इससे ये जो इतना जो सेटअप मैं आपको बताया, इस सेटअप से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कौन सी स्टेट से इलेक्ट्रॉन आया के स्पेस में, पर ये नहीं पता लगा सकते आप कि वो कौन सी ब्रिलियन जोन में कौन सी लोकेशन से आया। आई डोंट नो इफ इट इज देयर, ये ब्रिलियन जोन है मान लीजिए, चलो यहीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। वेदर द इलेक्ट्रॉन हैज कम फ्रॉम दिस स्टेट और फ्रॉम दिस स्टेट, क्योंकि 3D में तो कहीं भी ये स्टेट्स होंगी ना, फेर्मी स्फीयर की अगर आप बात करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we actually need to measure the angle as well, कि इस मटेरियल से, जो भी मटेरियल पे रेडिएशन पड़ी, उससे इलेक्ट्रॉन कौन से एंगल पे इजेक्ट हुए। so that is what we call the angle resolved photo emission spectroscopy। अगर आप ARPES करते हो, एंगल रिजॉल्व फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो, तो आप ये भी बता सकते हो कि ब्रिलियन जोन में कौन सी स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन आए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। और अब बात आती है बैंड स्ट्रक्चर निकाल लिया तो फेर्मी सरफेस कैसे निकालेंगे, फेर्मी सरफेस तो बैंड स्ट्रक्चर से ही आएगा। सो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो सबसे नीचे से आएंगे उनकी तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उनको यहां से इजेक्ट करने में भी कुछ एनर्जी लगेगी आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद जब वो इजेक्ट होंगे वैक्यूम स्टेट के बाद, तो वो एनर्जी जाएगी किसमें, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So what will be the highest kinetic energy? Highest kinetic energy will be of those electrons which are ejected from the Fermi level। तो हम क्या करते हैं कि highest kinetic energy measure करते हैं, और उससे हम आइडिया लगाते हैं कि भाई फेर्मी एनर्जी कितनी होनी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स की। भाई एनर्जी तो निकालनी है ना, EF निकालनी है आपको। सो आप ये देखते हो कि अच्छा हाईएस्ट एनर्जी पे कितने इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको, कौन से इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी थी,
तो वो जो हाईएस्ट एवर एनर्जी होगी दैट विल बी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विद व्हाट यू कॉल फेर्मी एनर्जी। तो वहां से आप फेर्मी एनर्जी एस्टिमेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की, कि कितनी फेर्मी एनर्जी होगी उस मटेरियल के लिए। फाइन। Once you have the Fermi energy, and then you can do ARPES, then you can measure even momentum conservation। ये momentum conservation से आप K की information लेते हो, K, क्योंकि momentum is proportional to K, P is H cross K। तो वहां से हम मतलब K की information निकालते हैं, energy की हमारे पास है, तो H और K को आप निकाल सकते हैं। And then we map all the states in a material which corresponds to the Fermi level। So Fermi level की सभी states होती हैं, वो क्या होती हैं? They makes what we call the Fermi surface. That's it. So that is how we can measure the Fermi surface of any material by employing a technique which we call angle resolved photoemission spectroscopy। एक बहुत qualitative idea मैं आपको दिया हूँ। Actual में this will be what you call a little more complex, isn't it? But okay, that's not the subject of this course as such, but okay, as a quick overview, that's what it is। ठीक है। कुछ limitations इसकी, पहले मैं limitations बता देता हूँ, then if there are any questions I will be helping you out। ये एक सरफेस प्रोब है, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से ही निकलेंगे, बहुत डीप लेवल इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते हैं। तो आपके मटेरियल के इनसाइड में क्या बैंड स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है या अंदर में क्या है, वो ज्यादा पता नहीं लगा सकते। सो दिस इज गुड फॉर थिन फिल्म्स और टू डायमेंशनल मटेरियल्स। ठीक है। फॉर सम मटेरियल सरफेस जो है यूजुअली इज प्रेटी डर्टी, मतलब उसमें क्या हो सकता है, कईयों के लिए वो सेम हो सकता है पर कईयों के लिए नहीं हो सकता ना, डिफेक्ट्स हो सकते हैं सरफेस। इसलिए जब भी आप कभी मौका मिले किसी एक्सपीएस लैब में जाओगे, so they have maintained a very good cleanliness, it is mandatory। क्योंकि जरा से भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में भी अगर बहुत जरा से भी आपको वो मिल जाएंगे, कुछ भी पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे, कुछ भी व्हाट यू कॉल स्मॉल फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे, वो भी अगर आपके सैंपल के सरफेस पे पड़ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपके सैंपल को कंटामिनेट कर देंगे, एंड देन यू वोंट गेट सेम इंफॉर्मेशन एज दैट ऑफ एक्चुअल सैंपल। सो इम्प्योरिटीज से बहुत अफेक्ट हो सकता है वो, इसलिए बहुत सेंसिटिव टेक्निक है। So that is why these states are actually what you call I mean these techniques are actually very sensitive। और clean rooms होते हैं इनके लिए। clean room मतलब वो नहीं झाड़ू पोछा लगाने के बाद clean हो गया। There are some techniques which are there to make sure that room is really clean। So अपनी अपनी classes होती हैं, class 10 clean room, class 100 clean room। सो पढ़ना इसके बारे में आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा खुद ही एक्सप्लोर करना इसको, व्हाट इज अ क्लीन रूम। और मेडिकल साइंस में भी बहुत यूज करते हैं, मटेरियल साइंस में भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्लीन रूम चाहिए होते हैं। तो वहां पे आप ऐसे सिंपल अपने ऐसे नहीं जा सकते हो, यू हैव टू वियर सम स्पेसिफिक सूट्स सो दैट दे आर कंटामिनेशन फ्री, एंड देन ग्लव्स वगैरह पहन के प्रॉपर हाथ में और शूज भी आपको बाहर निकाल के, दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। तो खैर मेन थिंग इज कि भाई कंटामिनेशन से बचाने पड़ते हैं सैंपल, पहली चीज। और क्या बोल रहा है ये, सी दैट इन ARPS may not reflect true properties of a material in the bulk। सरफेस पे तो बता सकता है कि अच्छा इस तरह के एनर्जी डिस्पर्शन है इलेक्ट्रॉन्स के, बल्क की नहीं पता चल सकती हैं। तो बल्क के लिए कुछ और टेक्निक्स हम करते हैं। देन समटाइम्स पीपल कंबाइन ARPS विद सम अदर सब्सिडरी मेजरमेंट्स, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है। खैर ARPS नीड्स अ वेरी क्लीन एंड फ्लैट सरफेस, वो मैं आपको बता दिया। तो सिंगल क्रिस्टल्स आर यूजुअली यूज्ड, सिंगल क्रिस्टल्स यूजुअली यूज करते हैं लोग ARPS मेजरमेंट्स के लिए, चाहिए ही सिंगल क्रिस्टल एक्चुअली। ठीक है। बट दोज आल्सो विद वेरी स्मूथ सरफेस जिसपे भी आपने मेजरमेंट करनी है। वन कैन ओनली मेजर द डिस्पर्शन फॉर E लेस देन म्यू, है ना, ऑक्यूपाइड स्टेट से ही तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ना। सो यू कैन ओनली टॉक अबाउट फिल्ड बैंड्स, एम्प्टी बैंड्स के बारे में आप कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हो, मतलब। ठीक है। और केमिकल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता ही दिया। केमिकल पोटेंशियल इज समथिंग रिलेटेड टू फेर्मी एनर्जी, है ना। सो केमिकल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं मैं बता दिया आपको। मोमेंटम रेजोल्यूशन Z डायरेक्शन में बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू X एंड Y। Z डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल, उस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो मोमेंटम कुछ कुछ एनर्जी अपनी, वो जैसे बाउंस करेगा, जैसे वो बाहर जाएगा तो रिकॉइल एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी कहाँ जाती है, इट मे गो इन टर्म्स ऑफ सम फोनोन और समथिंग लाइक दिस,
और इस टेक्निक में हम फोनोन की पता नहीं लगा सकते कि कितना कहाँ गया फोनोन हमारा, ठीक है। इसलिए जेड डायरेक्शन में जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज नहीं होती मोमेंटम की, बट हाँ इफ यू मेजर द मोमेंटम इन पैरेलल टू दी सरफेस px एंड py कंपोनेंट्स तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं रेजोल्यूशन। इसीलिए उस ब्रिलियन जोन के उसी प्लेन में आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी जो कि पैरेलल टू दी सरफेस होगा। So these are all certain limitations of ARPES and what are the good points of ARPES. So this is a very important technique and people do use it a lot in material science. ठीक है, इसमें कुछ कोई क्विक क्वेश्चन है किसी का तो बता सकते हो आप, if I can help you. Any question from this part? Dipali Gill now trying to join. What is going on? I don't know. सर ये कौन सी बुक हाँ, से है? संदीप बोलो। सर कौन सी बुक से है ये किटल में है, एआरपीएस किटल में नहीं है। मेरे पास एक चैप्टर है, आई हैव रिटन इट आई थिंक समथिंग लाइक 2 years बैक, तो मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। और भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी वैसे आपको एआरपीएस की, पर आई विल सेंड द चैप्टर व्हिच आई हैव रिटन, ठीक है। यस सर। और मेन उससे ही है ये एआरपीएस, और मैंने भी कहीं ना कहीं से लिटरेचर से ही वो किया था एक्सप्लोर, बट आपके काम के लिए वो चैप्टर हेल्पफुल हो सकता है आपको। सो आई विल सेंड इट मे बी ऑन योर गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन है और तो बताएं। वेल इफ नो मोर क्वेश्चन, चलो है कुछ? नो सर। अच्छा, इफ नो मोर क्वेश्चन देन अच्छा, ये एक टिपिकल वो है, हम जस्ट एक एआरपीएस मेजरमेंट का एक वो दिखाया हुआ है कि भाई कैसे हम पता लगा सकते हैं ई वर्सेस के का। तो हमने पढ़ा है कि भाई फेर्मी लेवल, ये फेर्मी लेवल है, इसके आसपास ई रेस टू द पावर हाफ डिपेंडेंस होता है ना एनर्जी का। तो इस तरह से अगर आप निकालते हैं फेर्मी एनर्जी के आसपास, तो इलेक्ट्रॉन्स आपको अलग अलग स्लाइसिस में आप मेजरमेंट करते हैं, मतलब आप वोल्टेज कहाँ पे लगा रहे हो और कौन से एंगल पे मेजरमेंट कर रहे हो वो करेंगे। सो जिस अलग अलग एंगल पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे आपको पीक मिलेगी, अगले वाले में कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे पीक मिलेगी। तो इस तरह से आप ई वर्सेस के आप निकाल सकते हैं। पैराबोलिक होता है ना ई वर्सेस के, सो वो ई वर्सेस के का पैराबोलिक नेचर जो है आप निकाल सकते हो, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m। अलग अलग एंगल्स पे आपको इस तरह से मिलेगा। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली मेजर। तो इससे आप पता लगा सकते हो। और देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि पीक की इंटेंसिटी भी लगभग सेम है ना, तो इससे आप लगा सकते हो पता कि भाई स्टेट्स कितनी है। तो डॉस जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है लगभग एक पर्टिकुलर के ऊपर। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इवन इंटेंसिटी में भी वेरिंग, आई मीन यहाँ पे विजिबल नहीं है क्लियरली, बट वो आप बता सकते हो कि कितनी डॉस होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस तरह के प्लॉट्स एक्सपेरिमेंटली लोग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वे टू मेजर फेर्मी सरफेस, एंड दैट इज डी हास वेन एल्पन इफेक्ट। तो डी हास वेन एल्पन इफेक्ट होता क्या है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। लेट मी फर्स्ट टॉक द क्विक इंट्रोडक्शन, क्लासिकल पार्ट ऑफ इट, then it is actually this employs quantization and a lot of quantum mechanics is involved there, but पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल पे, जो मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे क्या फर्क पड़ता है। so let us assume that we have some electron which is moving in a two-dimensional surface and then we apply a magnetic field perpendicular to the surface। तो उस केस में फोर्स क्या होगा उसके ऊपर, सीजीएस लिया है हमने Q by C, अदरवाइज SI में Q into V क्रॉस B होता है, ठीक है। सो दैट आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ। सो फोर्स इज इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स होगा, इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, करेक्ट। एंड व्हेन दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्चुअली फॉलो द सर्कुलर पाथ। पढ़ा हो आपने, +2 से पढ़ते आ रहे हैं ना, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगा, उसके लिए हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, v स्क्वायर ओवर r, करेक्ट। सो एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड आउट विच इज गोइंग टू बी v स्क्वायर ओवर r। पढ़ा है आपने ये भी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। सो दिस विल बी v स्क्वायर ओवर r विच इज गोइंग टू बी f ओवर m। एंड फाइनली अगर हम इसमें फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, तो v इंटू बी लिख दिया हमने सिंपली। सो q ओवर m इंटू v इंटू b, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन,
ठीक है. आफ्टर दिस एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड आउट यहां से कि भाई v कितना होगा. ठीक है. सो v विल बी इक्वल टू, यहां से देख लीजिए, q इंटू b इंटू आर. रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है, कुछ नहीं है. आई थिंक यू कैन डू दिस. ठीक है. कैन यू डू? करके देखो एक बारी फटाफट. एक सेकेंड जरा, लेट मी हैव ए शॉर्ट ब्रेक. जस्ट अ मिनट. हाँ, मैं कुछ, एक सेकेंड, गेटिंग सम इंपॉर्टेंट कॉल. आप मुझे एक मिनट दीजिए, तब तक आप ये स्टेप करिए जरा. लेट मी गिव फ्यू नेक्स्ट स्टेप्स. टाइम पीरियड भी निकालो तब तक. एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां तक करिए पहले. ठीक है. डू दिस स्टेप्स. आई एम गिविंग यू 2 minutes. कमिंग बैक आफ्टर 2 minutes.
ओके फाइन। सो आपके आगे ये स्टेप्स करे ही आपने वैसे। सो दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड वगैरह हम निकाल सकते हैं। दैट्स द क्लासिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। स्टैंडर्ड कुछ भी इसमें नया नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। फाइन। मूविंग अहेड, कहाँ पे हमारा मटेरियल वाली चीज शुरू होने लगती है इसमें, मटेरियल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस एक्चुअली राइट डाउन न्यूटन सेकंड लॉ। ये तो सबको पता ही है ना। सो इसको अगर हम लिखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डीपी ओवर डी, ये लॉरेंस फोर्स लिख दिया हमने राइट हैंड साइड में। डी आर ओवर डी टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी। ठीक है। एंड देन डी आर ओवर डी टी किससे रिलेटेड है, डी ओमेगा अपॉन डी के से। अब हम मटेरियल पार्ट पे आ रहे हैं। देखो के वर्सेस ओमेगा मतलब ई वर्सेस के, है ना, क्योंकि एच क्रॉस के ये देखिए यहाँ पे है ना। So you can see this is E versus K. So now we are coming to the material aspect of it. So dr over dt is nothing but actually dE over dk, first order derivative of energy with K. So अगर मैं वैसे भी ना लिखना चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि dr over dt जो है, वेलोसिटी जो है, this is related to gradient of E versus P. E versus K बोल लो चाहे E versus P बोल लो, one and same thing, right? Because P is H cross K. If I actually do that, so we can write down that dP over dt, ये आपकी जो न्यूटनियन सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आई मीन दिस इक्वेशन, इसको अगर हम लेते हैं तो dP over dt will come out to be equal to this. ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेमी क्लासिकल अप्रोच। अब आप बोलोगे अच्छा इसका क्या लेना देना है, हम कर क्यों रहे हैं। दिस इज एक्चुअली relevant to a material from this very important term on dE over dk, क्योंकि E versus K जो है किसी मटेरियल का, सॉरी, E versus K for any material actually follows from some quantum mechanical treatment. जैसे हमने कहा कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कर लो, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कर लो, क्रॉनिक पेनी मॉडल कर लो, टाइट बेंडिंग मॉडल अभी हम करने जा रहे हैं वो कर लो। तो ई वर्सेस के को निकालने के कई क्वांटम मैकेनिकल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी कर लो, बहुत सारे हैं। तो ई वर्सेस के, इफ वी आर गेटिंग इट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एंड देन यूजिंग दैट इन क्लासिकल इक्वेशंस, ये क्लासिकल इक्वेशंस है, तो उस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, सेमी क्लासिकल। कि भाई कुछ पार्ट इसका क्वांटम मैकेनिकली आ रहा है और कुछ पार्ट इसका हम क्लासिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकाल रहे हैं। अच्छा, dP by dt इतना होना चाहिए, इसको अभी रखें अपनी नोट्स में। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। सेमी क्लासिकल अप्रोच हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्चुअली डी हास वैन अल्पन इफेक्ट, DHBA भी कहते हैं इसको, DHBA ऑसिलेशंस। वो क्या होती हैं, उसके लिए हमें ये जो हमने क्वांटाइजेशन पढ़ी उससे एक लेवल आगे जाना है। एंड देन वी हैव टू एक्चुअली अप्लाई दिस बोर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये भी आपने पढ़ी होगी, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल। सो दिस इज योर मोमेंटम। सो योर मोमेंटम वेरिएबल P when integrated over a Bohr orbital, या एक ऑर्बिटल पे आप इंटीग्रेट करते हो in the space, real space, or we can say XYZ space, तो हम ये जनरलाइज भी कर सकते हो आप, इट्स नॉट नेसेसरली इन रियल स्पेस, जनरलाइज भी हो सकता है। दिस हैपेंस टू बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, वेयर n is an integer and gamma is some fixed value, typically up to say half होती है वो। For a circular motion of an electron, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, we are studying electron in a circular motion when actually magnetic field has been applied on the material. तो उस केस में क्या होगा, ये जो इंटीग्रल है दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू दिस, या आप देख ही सकते हो। ठीक है। गामा को इग्नोर कर सकते हैं हम, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अनइम्पॉर्टेंट फॉर द काइंड ऑफ कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि गामा एक कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है। सो वी कैन ऑलवेज सेट अवर ओरिजिन अकॉर्डिंगली कि भाई गामा उसी में ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए गामा को हम हटा के अपनी इनिशियल कंडीशंस में भी उसको वो कर सकते हैं। ठीक है। बट एनी हाउ, सो वो अगर हम करते हैं देन वी कैन से दैट 2 pi r by lambda is equal to n। 2 pi r by lambda is equal to n। ये कहां से आया,
ये ऊपर जो आप स्टेप देख रहे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से आया होगा, ठीक है। फ्रॉम हियर कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ आपके जो है वो इक्वेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस। ये बोर मॉडल में भी आपने पढ़ा होगा ना। दिस मीन्स कि इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो क्या होगा, वही ऑर्बिट की वैल्यूज अलाउड होंगी फॉर विच द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। पढ़ा है ना हमने वो। So this is the same thing. Now coming back to that equation which we were actually talking on the previous slide, dp over dt is equal to q. तो यहां से हम if we integrate this equation we can find out that p is equal to q into क्योंकि this is derivative on left hand side is with respect to time. Same is the case here with respect to time. Let us assume field is static, DC field है, it is not oscillating field. तो DHVA जब हम करते हैं तो स्टैटिक फील्ड लगाते हैं, हम डीसी फील्ड लगाते हैं, तो ओनली टाइम फैक्टर इज कमिंग इन dr over dt। तो इसको भी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो r बन जाएगा। सो वी कैन राइट डाउन दैट p इज इक्वल टू q into r cross b, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन एब्सॉर्ब अगेन द कांस्टेंट in our initial conditions, so we can say that p is equal to q into r cross b. Clear so far? यस सर। ओके तो इसको अगर हम लेते हैं तो हम ओके जस्ट मोमेंट, दिस वन वी कैन रिमूव। ओके सो या लेट अस नाउ राइट डाउन p क्रॉस b। p क्रॉस b हम क्यों लिख रहे हैं, दिस विल बी क्लियर शॉर्टली। चलो अभी बताता हूँ। p क्रॉस b हम कहीं पीछे यूज कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। v क्रॉस b ले रहे थे हम, तो वहां से आ जाएगा p क्रॉस b जो है। चलो अभी करते हैं। p क्रॉस b विल बी, तो p की वैल्यू पुट कर दी हमने, b यहाँ पे है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, उसको इंप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे ले सकते हैं r डॉट b विल बी 0 बिकॉज r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग और रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। सो इसलिए फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, ये आपका बचेगा। इसको अगर हम यूज करते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन दैट r वेक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। b स्क्वायर उधर चला जाएगा एंड दिस इज द साइड, लेफ्ट हैंड साइड विच वी आर यूजिंग। सो r वेक्टर अगर हमारे पास है तो यहां से हम dr लिख सकते हैं। dr किसके बराबर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो स्टैटिक है, फिक्स्ड है, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज नीदर द डायरेक्शन नॉर द मैग्नीट्यूड। So therefore dr will be this into dp. Only change which can happen is in dp. तो इसको अगर हम लेते हैं और इसमें अगर हम पुट करते हैं, अब हम फुली क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने यहाँ पे ये क्वांटाइजेशन भी लगा दी है, ठीक है। सो देन p डॉट dr विल बी इक्वल टू दिस, dr की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, सो p डॉट dp क्रॉस b वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। दिस कैन फर्दर बी रीअरेंज्ड टू गेट दिस थिंग, आई मीन c ओवर दिस b क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि b हमने यहां ले लिया बाहर, ठीक है। क्यों ले लिया इसको, that you can check because b is always perpendicular to velocity, momentum। तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लेके आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो दिस विल फाइनली कम आउट टू बी इक्वल टू दिस, p को हमने h क्रॉस k लिख दिया। हाँ बोलिए। अगर b इसके p के परपेंडिकुलर जाएगा तब तो ये 0 ही हो जाएगा सारा। क्या होगा, वहां पे डॉट प्रोडक्ट है ना, b डॉट p क्रॉस dp। अरे वो डॉट और क्रॉस की पोजीशंस आप चेंज कर सकते हो ना। हाँ जी सर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो ना। यस सर। तो इसलिए बिकॉज b इज परपेंडिकुलर टू p माना, बट p जो p क्रॉस dp होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू p इटसेल्फ, राइट। तो वहां से देख सकते हो। सो दिस विल बी इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, h क्रॉस स्क्वायर इनटू दिस थिंग। अब इसको अगर आप रीअरेंज करते हो, आई होप यू आर नोटिंग वेयर द नेक्स्ट स्टेप इज कमिंग। थोड़ा सा क्राउडेड सी स्लाइड है, तो ये दिस इज हाउ दिस हैज कम, है ना। इफ यू डू
तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये जो S है, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया ऑफ the reciprocal space, some area in reciprocal space between k and k plus dk. क्लियर? S से लिख रहे हैं हम इसको, और वो होना किसके बराबर चाहिए, ये इससे हम शुरू किए थे, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारी आई -c/q इंटू बी, c 1 भी ले सकते हो फॉर अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशंस, h क्रॉस स्क्वायर इंटू s, दिस इज इक्वल टू 2 pi h क्रॉस इंटू n प्लस गामा। S क्या है एक्चुअली, इफ यू टेक S को विजुअलाइज करते हैं, इफ यू टेक ये k साइज का वो है, कोई सर्कल है रेसिप्रोकल स्पेस में, सो k और k प्लस dk के बीच में जो एरिया होगा वो क्या आएगा, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिफाइंड बाय दिस इंटीग्रल ओवर k ही कर रहे हैं ना हम ये dk के ऊपर, सो दैट विल बी S, ठीक है। k और dk के बीच में जो एरिया होगा रेसिप्रोकल स्पेस का, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस कीप दिस इक्वेशन इन आवर नोटबुक्स। आगे चलते हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन, एक सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस, ओके। क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एट फेर्मी सरफेस, सो दिस इज व्हाट वी अराइव्ड एट, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में लिया। यहां से अगर हम रीअरेंज करते हैं चीजों को, तो 1/b को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यू कैन सी दिस, करेक्ट। राइट हैंड साइड में यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग, दिस रिजल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड इट्स एक्चुअली द होल आइडिया बिहाइंड द DHVA ऑसिलेशंस। व्हाट आर DHVA ऑसिलेशंस, इस पे बात करेंगे। सो ये 1/b इसके बराबर है। सो नाउ इफ वी ट्यून द मैग्नेटिक फील्ड एंड मेजर समथिंग, एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, फॉर एग्जांपल से मैग्नेटाइजेशन, एज ए फंक्शन ऑफ 1/b, अगर हम इसको कोई भी प्रॉपर्टी को एज ए फंक्शन ऑफ 1/b मेजर करते हैं, तो हम क्या पा सकते हैं यहां से, वी शैल ऑब्जर्व दैट ऑसिलेशंस विल बी ऑब्जर्व्ड, मतलब वो प्रॉपर्टी में कुछ ऑसिलेशंस आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि n इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो आएगा आपका, देन n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। सो देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ b, मतलब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये सेटिस्फाई होगी डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स पे। कैन यू सी दिस, पर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ये नहीं कि फील्ड बढ़ेगी तो कुछ बढ़ता रहेगा, नो। एक तो n इक्वल टू 1 के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, उस केस में फील्ड होगी से b1, दूसरे केस में वो n इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई होगी, वो फील्ड होगी b2, सिमिलरली एक और बारी b3 एंड सो ऑन। सो ये b1 b2 b3 ये जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम, क्योंकि S तो फिक्स है, मान लीजिए एरिया ऑफ ब्रिलियंट जोन फिक्स है, H क्रॉस फिक्स है, ऑल अदर थिंग्स आर फिक्स्ड, राइट, ऑन द राइट हैंड साइड। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर 1/b की टर्म्स में हम लेंगे इसको, तो पीरियोडिसिटी आएगी आपकी 1/b, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन 1/b, एंड दैट कितना पीरियोडिसिटी आएगा ये आप प्रूव कर सकते हो, दैट विल हैपन टू बी इक्वल टू 2 pi, q की बजाय e ले लो, ओवर h क्रॉस c इंटू s, ये आपकी पीरियोडिसिटी आएगी। मींस व्हेन यू गो फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, तो आप चेक कर सकते हो कि इतने 1/b के बाद ये रिपीट करेगा कोई भी प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? यस यहां सर, तक समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये जो B के साथ किसी भी प्रॉपर्टी का चेंज होना होता है मटेरियल का, मैग्नेट 1/b के साथ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डी हास वैन अल्पन ऑसिलेशंस, DHVA ऑसिलेशंस। और ये ऑसिलेशंस आर यूजफुल फॉर मेजरिंग द फेर्मी सरफेस। किस तरह से, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। दिस पीरियोडिसिटी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पॉकेट्स। कौन सा एरिया, ये जो S है, ये ऑसिलेशन किस पे प्रोपोर्शनल है, S पे। S इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ फेर्मी सरफेस। अगर हम फेर्मी सरफेस की बात करेंगे, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए हम ले रहे हैं कंडक्टिविटी, ठीक है, या मैग्नेटाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, तो वो जो मेटल्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टी होती है जैसे कंडक्टिविटी है, दैट इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स नियर फेर्मी सरफेस। इसलिए हम किस एरिया से ज्यादा हमारे रेलेवेंस का होगा, दैट विल बी एरिया ऑफ द फेर्मी सरफेस। तो इसलिए हम उस एरिया
की इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू लुक एट दैट इन मोर डिटेल। अगर हम इसमें देखते हैं कि भाई बी को, मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, सेम इक्वेशन में ही अगर हम ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड साइड में ले आते हैं और एस को इधर ले आते हैं, तो डेल्टा एस विच इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझिए पहले। ये है क्या टेक्निकली, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये क्या बोल रहा है आपको कि भाई डेल्टा एस जो है, चेंज इन एस फॉर एस एट एन माइनस एस एन माइनस वन। ये क्या बोल रहा है कि दो सिचुएशंस में आपके जो फेर्मी सरफेस की जो एरियाज होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, हाँ एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इसको चेक करने दो। व्हाट इज इट सेइंग? नीड टू गो टू किटल। ओके, एस एन, हाँ एक सेकेंड, माइनस एस एन माइनस वन। सो इज इट गिवन हियर? The area between successive orbits. एक सेकेंड, हाँ just a minute, let me find out the suitable explanation for this. Yes, अच्छा कुछ पार्ट में इसमें छूट गया है मुझसे जो मैं डाला नहीं हूं, but anyway let me explain it. Okay, यहां से if I try to look at this equation, ये वाली इक्वेशन अगर देखता हूं, मैं एक बारी लिख लेता हूं पहले, तो वहां से हमें आइडिया लगेगा इसका ना, बिकॉज दैट स्किप्ड ऑफ माई माइंड। चलो कोई नहीं, इस इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि एस एन क्या होगा मेरे पास? एस एन विल बी इक्वल टू ई 2 पाई एन प्लस गामा, ये मैं ऐसे फटाफट से क्विकली सा आधा सा लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई सी एच क्रॉस इनटू बी। This will be your Sn. If you can see that. Oh, B will be, B ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, सॉरी, ठीक है। B जो है यहां से, let me change the color of the cursor. B जो है यहां से इधर को जाएगा, ठीक है। B यहां चला जाएगा ऊपर, S जो है यहां चला जाएगा। So you can see that is what is going to come. So basically Sn क्या बोल रहा है, या एस एन आपको क्या दिखा रहा है? इट इज टेलिंग अस कि भाई कौन सा फेर्मी सरफेस का एरिया होगा, या कितनी वैल्यू होगी उस सरफेस एरिया की, फेर्मी सरफेस की, जिसके लिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो बेसिकली इन फेर्मी सरफेस एक्सपेरिमेंट्स वी मे बी इंटरेस्टेड इन इंक्रीमेंट इन बी, दैट इज डेल्टा बी, ये जो राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड बैठी है, कि कितनी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें कि हमारा फॉर विच द सक्सेसिव ऑर्बिट्स n and n+1 हैव द सेम एरिया इन द k स्पेस। हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा ये मेरा nth ऑर्बिटल के लिए ये आता है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर हम n+1 ले लें, ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसमें, तो भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन, सेम चीज हम बोल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कौन सी सक्सेसिव वैल्यूज होंगी n और n+1 की, या कौन सी मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी होगी, मैग्नेटिक फील्ड में हम कितना चेंज करें, दैट इज बी एन बोल देते हैं उसको, जो n के लिए सेटिस्फाई करेगी, बी n+1 बोलते हैं जो n+1 के लिए सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। उस और ये सेटिस्फाई कब होगी, इसका मतलब n और n+1 की उन वैल्यूज के लिए एरिया ऑफ द फेर्मी सरफेस विल बी सेम, ठीक है, तभी सेटिस्फाई होगी। तो वो वैल्यूज कौन सी हैं जिनके लिए हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर कि डेल्टा एस इन जनरल कितना होगा, ये होगा। पहले हम डेल्टा एस का एक्सप्रेशन हमने निकाला, एस एन माइनस वन इतना होगा, मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू बी द एरिया इन के स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल स्टेट। एक स्टेट का एरिया कितना होगा? लेट अस अज्यूम हमारा लैटिस जो है वो स्क्वायर लैटिस है, सो एल जो है वो मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम है। आपने पढ़ा होगा, हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, इसी यूनिट में पढ़ा था पिछली कुछ क्लासेस में, कि भाई ब्रिलियन जोन में एरिया पर स्टेट कितना होता है, 2 पाई बाई एल होल स्क्वायर।
ठीक है, वेयर एल ये बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशन से आया था। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस ध्यान से कि नहीं, किटल में जाके देखना एक बारी, पिछले कुछ ही लेक्चर्स में हमने कवर किया है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स दैट, तो ओके इसको मैं आपको दिखाता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड से हो क्या रहा है एक्चुअली, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच वी नीड टू नोटिस, कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आप लगा रहे हैं, मैं पहले आपको यहां दिखाता हूं डायग्रामेटिकली, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, द एनर्जी स्टेट्स आर कॉन्टिन्यूअस, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m, दिस इज b इक्वल टू 0 केस, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, सो देयर इज हैपनिंग अ क्वांटाइजेशन। ये B1 मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैंने लगा दी है, ठीक है। सो ये एनर्जी स्टेट्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्वांटाइज हो जाएंगी, और इस तरह से आपको एनर्जी लेवल्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो मिलेंगे वो कितनी स्टेट्स होंगी, इस लेवल में कितनी स्टेट्स होंगी या इस लेवल में कितनी स्टेट्स होंगी, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। क्योंकि होगा क्या कि इस सारे रीजन की जो स्टेट्स हैं, ऑल दीज स्टेट्स आर गोइंग इनटू दिस सिंगल लेवल, ठीक है। एक सेकेंड, ऑल दीज स्टेट्स विल बी गोइंग टू दिस सिंगल लेवल। सिमिलरली इस सारे रीजन की स्टेट्स इस लेवल में जाएगी, एंड दीज लेवल्स आर कॉल्ड लैंडाउ लेवल्स। और यहां पे हम वही कह रहे हैं कि भाई सरफेस एरिया, ये जो ब्रिलियन जोन में जो एरिया है किसी भी स्टेट्स का, वो चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाएंगे, तो ये जो D है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इसको हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये क्या है देखो, ये है एरिया, चेंज इन एरिया बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी दिस, मैग्नेटिक फील्ड से इतना चेंज इन एरिया होगा, Sn-Sn-1, कोई नियर बाई ऑर्बिटल्स हैं उनमें, ठीक है। और प्रत्येक टोटल एरिया का चेंज है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर यूनिट एरिया कितने होंगे, इतने होंगे, ठीक है। या सॉरी, दिस इज एरिया पर ऑर्बिटल, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, रो इंटू बी, वेयर दिस रो इज व्हाट वी कॉल सम फिक्स्ड कांस्टेंट विच इज प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज नंबर्स, और इन लेवल्स को हम क्या कहते हैं, लैंडाउ लेवल्स कहते हैं। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्टेट्स थी वो क्वांटाइज होंगी, और इनके बीच की स्पेसिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू h क्रॉस ओमेगा c, और वो किससे आएगी, ये जो हम पढ़े थे अभी पीछे ही किया था हमने, है ना, E इंटू एच क्रॉस ओवर m स्टार इंटू B1, और सभी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगे। ये भी हमने कहीं यहां पीछे जैसे किया है शायद, है ना, द स्पेसिंग will be given by this and they will be uniformly spaced, bn और bn+1 सभी जो है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगे। n को अगर आप अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहां से आप एनर्जी एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं कि क्या आएगी स्पेसिंग, ठीक है। These energy states are merging into this region। अब हमने फिलिंग ऑफ द स्टेट्स पढ़ा है, तो क्या होगा, इस जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे इतनी एनर्जी रेंज में फिल होने थे, वो कहां जाएंगे, एक सिंगल ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिट में चले जाएंगे मेरे, लैंडाउ लेवल बोलेंगे इसको, ऑर्बिटल भी नहीं बोलेंगे, इन दिस लैंडाउ लेवल। अब मान लो फेर्मी लेवल यहां पे कहीं आना था मेरा, फेर्मी लेवल सपोज, अच्छा इसमें बनाया है इसने फेर्मी लेवल, तो इसी को यूज करते हैं। सपोज हियर इज द फेर्मी लेवल जो आपको दिख रहा है ऊपर, EF, दिस वन। सो क्या होगा, ये सारी स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसके कुछ इसमें चले जाएंगे, एंड सो ऑन। सो अल्टीमेटली इधर क्या मिलेगा आपको, ये वाली स्टेट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, इधर वाली स्टेट एम्प्टी। सो डीजेनरेसी कितनी होगी लैंडाउ लेवल की, दिस इज गिवन बाय दिस वन, दिस रो इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ द लैंडाउ लेवल, ठीक है। सॉरी, नॉट रो इज प्रोपोर्शनल टू डीजेनरेसी, बट दिस D इज कॉल्ड डीजेनरेसी। कितनी स्टेट्स होंगी मतलब डीजेनरेसी है, D is telling you number of states in a Landau level, ठीक है, number of orbitals in a Landau level। तो वो कितनी होगी, that is proportional to B as well as of course rho which is made up of fundamental constants। so B पे proportional होगी। तो कितनी states होंगी, of course it depends upon how much is the spacing। जैसे यहाँ पे B2 लिया, दूसरी फील्ड ली कोई which is higher than B1, let us assume B2 is higher than B1, तो उस केस में क्या होगा,
इनकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ गई. I hope you can see the spacing has increased, means number of energy states which must be going into this Landau level will be more. ज्यादा होगी स्टेट्स, क्योंकि पहले जो थी वो इसी रीजन की स्टेट्स जा रही थी लैंडाउ लेवल में. अब क्या है, अब थोड़ा ज्यादा रीजन है. अगर एनर्जी एक्सिस पे देखोगे, सो दिस रीजन इज लिटिल वाइडर मोर, तो इसलिए इसकी डीजेनरेसी. और मैथमेटिकली आप यहां से देख सकते हो, बी बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन लैंडाउ लेवल. अब होगा क्या, मतलब ये जो DHVA ऑसिलेशंस आती हैं, ये किस लिए आती हैं या क्या कारण होता है इसका? I will need maybe maximum 5 minutes from you, please. तो चलेगा 5 मिनट एक्स्ट्रा? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आपको समझ आ रहा है? Is there any question what I am trying to say? अभी तक बोला जो उसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो. I can try to explain. नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं. अच्छा, किटल चैप्टर 9 में ये सब डिटेल्स हैं वैसे. इफ यू वांट फर्दर थिंग्स टू आई मीन क्लियर, तो वहां से आप पढ़ सकते हो आराम से. बट हाँ, तो इतनी स्टेट्स उसमें जाएंगी आपकी, ठीक है. अब इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे फेर्मी लेवल तक, फेर्मी लेवल यहाँ था, तो ये सारी स्टेट्स इधर जाएंगी, ठीक है. मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लैंडाउ लेवल को फिल करेंगे और ये लैंडाउ लेवल कंप्लीटली एम्प्टी होगा, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है. सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, तो ये लैंडाउ लेवल में आपके, क्योंकि फेर्मी लेवल तो यहां था, तो ये पार्शियली फिल्ड होगा, क्योंकि इस लैंडाउ लेवल में ये सारी स्टेट्स थी. दिस मच स्टेट्स वर देयर इन दिस लैंडाउ लेवल. बट नाउ सिंस वी हैव फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इतने इलेक्ट्रॉन है तो आधी स्टेट्स भरेंगी इसकी, आधी वेकेंट रहेंगी. सो दिस विल बी पार्शियली फिल्ड लैंडाउ लेवल. पार्शियली फिल्ड स्टेट्स होंगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी. और अगर पूरी तरह से कोई स्टेट फिल्ड है तो कंडक्टिविटी लो होगी, क्योंकि मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी स्टेट चाहिए, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट लैंडाउ लेवल में होंगी. तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो सिस्टमेटिकली, तो एक सिचुएशन आएगी जब एक लैंडाउ लेवल कंप्लीटली फिल होगा, फिर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते, ये कॉन्टिन्यूसली होगा. मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर सकते हैं ना. तो ये पार्शियली फिल होने लगेगा, पार्शियली फिल होने लगेगा, और फील्ड बढ़ाते हो तो एक सिचुएशन आएगी, दिस वन से B3 ये बता रहा है वहां पे, और ज्यादा बढ़ाई तो अब ये वाला भी लैंडाउ लेवल कंप्लीटली फिल्ड है. यू कैन सी कि ये सारी स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन्स सारे कहां जाएंगे, यहाँ पे पूरा हो रहा है हिसाब किताब, ठीक है. सो ऑल ऑफ देम विल बी गोइंग इनटू दिस लैंडाउ लेवल. तो अगर हम कंडक्टिविटी भी फॉर एग्जांपल मेजर करते हैं, so we will find out there will be a drop in conductivity as a function of magnetic field, rather 1 over B. That's one way of looking at it. सेम चीज यहाँ पे दिखाई हुई है. तो कितना डीजेनरेसी होगा ये यहाँ से हमने देख लिया लैंडाउ लेवल की, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी डिटेल कि कैसे वो लैंडाउ लेवल जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है. इसका दूसरा विजुअलाइजेशन ये है, मान लीजिए ये 2D इलेक्ट्रॉन गैस है आपकी, ये क्वाजी कॉन्टिन्यूस स्टेट्स हैं जैसे हम 1D में बनाते थे. तो उसमें क्या होगा, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ये आपके अलग अलग लैंडाउ लेवल्स को दिखा रहा है. n इज इक्वल टू 1 वाला एक लैंडाउ लेवल हुआ, ये दूसरा लैंडाउ लेवल, ये तीसरा लैंडाउ लेवल, ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 चौथा. सो एनर्जी स्टेट्स गेट्स क्वांटाइज्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और हर एक उसमें इंटरेस्टिंगली हर एक लैंडाउ लेवल में कितनी स्टेट्स होंगी, दे विल बी सेम. अगर आप देखेंगे, एक देखो इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से लैंडाउ लेवल में कितनी स्टेट्स होंगी, दैट इज रो इनटू बी, करेक्ट. रो इज फिक्स्ड, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद n. इसमें n डिपेंडेंस नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन b. तो हर एक लैंडाउ लेवल में फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही होंगे. यहां से भी क्लियर है भाई, इक्वल एनर्जी रीजन की स्टेट्स आ रही है ना हर एक लैंडाउ लेवल के लिए, तो इसलिए फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे हर एक लैंडाउ लेवल में. सेम चीज यहाँ पे. तो अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना चाहते हो, एरिया निकालना चाहते हो मान लो लैंडाउ लेवल का, तो कितना होगा, पाई इंटू डेल्टा के स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वाला, क्योंकि रेसिप्रोकल स्पेस है, ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई, 2 पाई के, ये 2 पाई आर इंटू डी आर, जैसे हम एरिया ऑफ ए सर्कल निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, वैसे भी देख सकते हैं. यहाँ पे डेल्टा के हम किससे रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी से.
because E is equal to H cross square K square over 2m, delta E is equal to this one. तो यहां से आप निकाल के पुट कर सकते हैं और डेल्टा E की टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, डेल्टा K को। थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा लेना आप लोग, ठीक है। तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एरिया, कुछ मैं मिस कर दिया क्या यहाँ पे? एक सेकेंड, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ लग रहा है थोड़ा सा। एरिया जो है ये आएगा आपका दिस वन, विच इज इक्वल टू 2 पाई m ओमेगा c ओवर h क्रॉस माइनस 2 पाई e माइनस b ओवर h क्रॉस। एक सेकेंड, ओके। सर्कल कॉरेस्पॉन्ड टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर n इन दी एनर्जी। अच्छा, एनर्जी जो होगी n माइनस हाफ k ओमेगा c होगी, मतलब लैंडौ लेवल की एनर्जी जो होगी, एनर्जी की बात नहीं करी हमने, दैट इज गोइंग टू हैव समथिंग लाइक h क्रॉस ओमेगा c, कुछ ऐसी रहेगी, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा c रहती है। मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन होता है सो इट बिहेव्स लाइक ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, कुछ इस तरह से, क्योंकि ऑसिलेशंस हो रही है ना, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सो वहां से वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल इसने दिखाया है, किटल का ही ग्राफ है ये, that suppose we have a system of 50 electrons, ठीक है, n is equal to 50, total number of electrons 50, और इसमें ये दिखा रहा है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ती है तो कितने लैंडौ लेवल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, बाकी के आपके पार्शियली होंगे, ठीक है। सो n इक्वल टू 50 के लिए मान लीजिए समवेयर हियर s इज इक्वल टू 1, ये ऑर्बिटल इंडेक्स है, ये लैंडौ लेवल का इंडेक्स है, ठीक है। s इज इक्वल टू 1 मतलब एक लैंडौ लेवल पूरी तरह से फिल्ड होगा और दूसरा यहाँ पे दो लैंडौ लेवल, मैग्नेटिक फील्ड इसमें दोनों लैंडौ लेवल, यहाँ पूरा पूरा फिल होगा दूसरा लैंडौ लेवल, यू कैन सी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी फील्ड यहां से शुरू करते हैं, एट वेरी लो मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज नंबर ऑफ लैंडौ लेवल्स विल बी फिल्ड। इसको आप यहां से देखते हो, जैसे लो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उतने ही ज्यादा लैंडौ लेवल फिल होंगे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 4 लैंडौ लेवल्स फिल्ड हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 लैंडौ लेवल फिल्ड नहीं है कंप्लीटली, यहाँ पे सिर्फ 3 ही लैंडौ लेवल कंप्लीटली फिल्ड है, चौथा पार्शियली फिल्ड है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाई, यू हैव ओनली 3 लैंडौ लेवल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड। तो इस तरह से फर्दर लैंडौ लेवल्स जो है उनकी फिलिंग, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कितने लैंडौ लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे वो यहां से हम पता लगा सकते हैं। मतलब तो लो मैग्नेटिक फील्ड पे लार्ज नंबर ऑफ लैंडौ लेवल्स विल बी फिल्ड, और ये रिमेनिंग जो है वो पार्शियली वो फिलिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर मेरी फील्ड इतनी है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है ये, इतना फील्ड है, तो यहाँ पे मेरे एक सिचुएशन होगा कि 2 लैंडौ लेवल कंप्लीटली फिल्ड होंगे और 50 के 50 इलेक्ट्रॉन्स फुली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ाई तो क्या होगा, मेरा जो दूसरा लैंडौ लेवल था वो पार्शियली फिल हो जाएगा और पहले लैंडौ लेवल कंप्लीटली फिल होगा। बट दूसरे लैंडौ लेवल में कुछ एम्प्टी स्टेट्स भी होंगी हमारी, मतलब 50 में से यू कैन से समथिंग लाइक, मान लीजिए यहाँ पे मे बी समथिंग लाइक, यहां से अगर आप यहाँ को देखते हो, मे बी लाइक 30 या 28 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब दूसरे लैंडौ लेवल में समथिंग लाइक 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी पहले लैंडौ लेवल में समथिंग लाइक 28 इलेक्ट्रॉन होंगे या 30, और दूसरे में पूरे भरने के लिए 30 ही चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी 30, पर हमारे पास 50 ही है टोटल, तो दूसरे में कम बचेंगे, तो दिस इज पार्शियली फिल्ड लैंडौ लेवल। सो इस तरह से हम कह रहे हैं कि भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो लैंडौ लेवल किस तरह से कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड होंगे। उसकी वजह से अगर हम इसको 1/b की टर्म्स में प्लॉट करें, ये ग्राफ सेम है, 1/b की टर्म्स में प्लॉट किया है उसने, तो आप पाएंगे कि इट हैज ए पीरियोडिसिटी ऑफ 1/b, ठीक है, 1/b कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, और वो पीरियोडिसिटी कितनी होगी, यहाँ पे हमने देखा था, देखो 1/b के साथ कितनी पीरियोडिसिटी होगी, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये वाली। So you can see this is going to be the periodicity. This is proportional to ये वाला, sorry. This one is going to be the periodicity. Actually, what I want is कि तुम लोगों में से कुछ, I mean maybe any one of you if is interested, तो आप लैंडौ लेवल्स पे एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से लैंडौ लेवल्स अफेक्ट होते हैं। We can write down small programs और उसको और डिटेल में ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। खैर, so this is what is going to happen with magnetic field.
तो मेन फंडा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप प्रॉपर्टीज की ऑसिलेशंस को मेजर करते हो। कोई भी मान लो मैग्नेटाइजेशन लिया, ये फॉर एग्जांपल ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी कैसे वेरी करेगी। सो अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी है तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो किससे, du ओवर dB से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, उससे निकाल सकते हो। So if you do that, then you can find out magnetic moment, and then you can find out कि magnetic moment is also oscillating function with respect to magnetic field 1 over b. तो वो अगर आप निकालते हो तो आप निकाल सकते हो कि ऑसिलेशन कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी, ये पीरियड आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। और ये पीरियड किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन s। यहां पे अगर आप देखोगे, दिस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द फेर्मी सरफेस। तो बाय मेजरिंग दीज ऑसिलेशंस with magnetic field of a particular property along various directions, we can find out area of the Fermi surface. ये थोड़ा सा फंडा है, थोड़ा tedious है, of course there are lot many things going into that, बहुत सारी और चीजें भी होंगी, but basic idea is कि by measuring these DHVA oscillations we can talk about area of the Fermi surface, और Fermi surface के area की बात कर पा रहे हैं तो we can, by doing lot many such measurements along various directions, we can find out how does the Fermi surface looks like। क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में अगर हम उसके एरियाज निकाल लेते हैं फेर्मी सरफेस के, तो हम धीरे धीरे इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं फेर्मी सरफेस की डिफरेंट एरियाज को देख के कि अच्छा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कितना एरिया है, दूसरी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कितना एरिया है, एंड सो ऑन, एंड देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट और हाउ डज द फेर्मी सरफेस लुक्स लाइक। ठीक है, सो इस तरह से आप DHVA इफेक्ट का इस्तेमाल करके फेर्मी सरफेस को मेजर कर सकते हो। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आपकी तरफ से कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर। नहीं भी होता है तो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। कोई है क्वेश्चन किसी का? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ, नो सर। अच्छा अटेंडेंस लगा गए हैं, काफी सारे बच्चे हैं। चलो अभी ओरल अटेंडेंस सुनो। वेयर इज माय अटेंडेंस शीट, एक सेकेंड है, डिस्कार्ड। हाँ जी, आ जाओ अटेंडेंस पे। टुडे इज 23rd December 2020। तो इसके साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है आज। कल मैं आपको ऐसे नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाला था, एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया, टाइट बाइंडिंग मॉडल, है ना? आई होप आपने पढ़ा होगा। कल क्विकली थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, और फिर मैं अगले यूनिट के बारे में बात करूंगा। वैसे कल मैं छुट्टी पे होऊंगा, बट आई विल टेक योर क्लास, क्योंकि थोड़ा सा समय कम बच रहा है। एक यूनिट है, हालांकि बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत इतना ज्यादा टेक्निकल मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा कवर, बट फिर भी कुछ हमें ध्यान में रखना है, तो कल मैं आपकी क्लास लूंगा, ठीक है? अंकिश भाटिया एब्सेंट एज यूजुअल। अंकित एब्सेंट। अंशुल? Yes, sir. चेतना? Yes, sir. दीपाली? दीपाली एब्सेंट। धर्मेंद्र? धर्मेंद्र एब्सेंट। हरीश? Yes, sir. हिमांशु? Yes, sir. कल्पना? Yes, sir. कोमल? Yes, sir. मनीषा? Yes, sir. मनीषा कौंडल? Yes, sir. रीताक्षी? Yes, sir. दीपिका? Yes, sir. साक्षी? Yes, sir. स्मृति? Yes, sir. शगुन? Yes, sir. शिवांगी? Yes, sir. श्रेया? Yes, sir. सौरभ? सौरभ Yes, sir. प्रेजेंट है सौरभ? अच्छा। सुदेश? Yes, sir. उमेश? Yes, sir. अनु? Sir. Yes, sir.
Sir. विशाली, Yes, sir. विवेक, अमित, Yes, sir. दीक्षा, Yes, sir. अंकुश, Yes, sir. प्रियंका, Yes, sir. साहिल, साहिल एब्सेंट, दिवाकर, दिवाकर एब्सेंट, राहुल, Yes, sir. संदीप। यस सर। कोई छूट गया हो जिसकी अटेंडेंस ना लग पाई हो? अंकित, दीपाली हाँ, दीपाली दीपाली प्रेजेंट है। यस सर और कोई, एनीवन एल्स? ओके देन फाइन, थैंक यू।